ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਗੁਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮੰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸੇ ਪੈਂਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 8 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਤੀ ਸੋਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਤੀ ਸੋਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਗੋਗਨਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਣੂ ਜੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ 3rd ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, 10-10, 15-15000 ਰੁਪਏ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। और ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮੰਤ ਸਕੂਲ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਆ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਾ ਨਿਬੜੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ। 7 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ नहीं करूँगे। तो 17 तरीक ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਧਰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। लगाया है, मैं इसके हक में ही नहीं हूँ। अगर स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफिस पूरा रिस्पेक्टफुली इज़्ज़त के साथ उनकी डिमांड्स को सुनने के लिए तैयार है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, जो स्कूल की मर्यादा है, जो स्कूल की लिमिटेशंस हैं, वहाँ तक अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो मेरे को लगता है कि धरने का मकसद ही कोई नहीं था। धरना होता है प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट किस चीज़ का? जब स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल हम आपकी सारी डिमांड्स को सुनने के लिए तैयार भी हैं और साथ ही में जहाँ तक स्कूल की कैपेसिटी होगी, जहाँ तक हम अपने फाइनेंशियल बजट को लुक आफ्टर करते हुए जहाँ तक हम एडजस्ट कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं। तो धरने का यह मकसद ही नहीं था। धरना लग गया तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि उसमें मेरे पेरेंट्स कम हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, कुछ अनआइडेंटिफाइड और अनफेमिलियर चेहरे हैं जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो आप बताइए कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, क्या मैं उन लोगों को आंसरेबल हूँ फीसों के लिए या एनुअल चार्जेस के लिए? डिमांड थी, एक पेरेंट्स की एक डिमांड आई कुछ दिन पहले, एक ग्रुप पेरेंट्स का आया। जितनी मुझे परमिशन थी मैनेजमेंट की तरफ से, जो मेरी पावर्स में था, दैट मच डिस्काउंट एंड वेव ऑफ आई हैव ऑलरेडी ऑफर्ड। उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन दीजिए, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट ग्रुप आ गया। नेक्स्ट ग्रुप ने सीधा ही ये कहा, अब अगर मैं ज़िद पे अड़ जाऊँ, मैं बिल्कुल पूरा लेना है, पेरेंट्स कहें हमें कुछ नहीं देना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ मुझे रिलैक्सेशन देनी पड़ेंगी और कुछ रिलैक्सेशंस पेरेंट्स को भी अपने माइंड में लेके चलनी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे ही इनके साथ बातचीत हुई, बातचीत करने के 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद सोशल नेटवर्क पे एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि 12 तारीख को हनुमत स्कूल में धरना। तो इन्होंने मुझे मैनेजमेंट के साथ बात करने का मौका कहाँ दिया? अगर मौका दिया होता, मेरे को पीस ऑफ माइंड के साथ, एक पीसफुली माइंड के साथ मैं मैनेजमेंट के साथ बैठती, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करती, उन्हें एहसास कराती, कुछ डिसीजन लिया जाता। डिसीजन देने के लिए समय और माहौल देना ज़रूरी है। डिमांड्स, अब उनकी डिमांड्स आई थिंक सो, मेरे को आप सभी लोग बाहर ही थे, उनकी डिमांड्स थी कि जो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है बच्चों की, जो हम मंथली ट्यूशन फ़ीस देते हैं, उसे 50% वेव ऑफ किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑल्सो अ टीम ऑफ मोर देन 70 टीचर्स एट द बैक विच आर टू बी सपोर्टेड विद द फाइनेंस। उनकी भी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं। उसके बाद एनुअल चार्जेस की बात है, एनुअल चार्जेस पूरा वेव ऑफ किया जाए। तीसरी डिमांड थी ट्रांसपोर्टेशन को आधा किया जाए। बाकी मैंने उन्हें यही रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना मेमोरेंडम हमें दे दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट इसके ऊपर बैठेगी, चर्चा करेगी, डिस्कशन होगी, जो रिजल्ट होगा, जितनी भी तारीख 17-18 हम फाइनल कर लेते हैं, तब ये फैसला दे दिया जाए। एनुअल चार्जेस की बात ऐसे है मिस्टर मनीष, लास्ट ईयर स्कूल वाज ओपन इन द मंथ ऑफ नवंबर में स्कूल खुल गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने स्कूल चला। इवन कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी कि जितनी पिछले साल की फ़ीस है उसमें कुछ डिस्काउंट करके बाकी पैसे को 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके आप पेरेंट्स से अगस्त की डेट तक ले सकते हैं। हमने लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने बड़ा ग्रेशियसली, बड़े दिल के साथ वो पैसा हमने मांगा ही नहीं पेरेंट्स से। वी डिडंट डिमांड एनीथिंग इन द नेम ऑफ एनुअल चार्जेस। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, मंथली ट्यूशन फ़ीस के अलावा स्कूल ने पिछले साल कुछ भी चार्ज नहीं किया। इस साल आपने भी देखी होंगी गाइडलाइंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्लियर किया कि इस साल जो पिछले साल का डिसीजन था वो 2021-22 के स्टेटस को इफेक्ट नहीं करेगा। अब पेरेंट्स को जब स्कूल कहता है, जैसे स्कूल कहता है, वो पेरेंट्स को फीसें देनी पड़ेंगी। जब अप्रैल में स्कूल खुला तो वी हैड डिस्कशंस विद द पेरेंट्स, उनसे बात हुई, मैडम अभी तो स्कूल खुला नहीं, अभी हम मैनुअल चार्जेस नहीं होंगे। अब नाउ द स्कूल इज़ ओपन ऑन 2 अगस्त एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। स्कूल खोला गया, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया गया कि जो पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते हैं बच्चों को ऑफलाइन में, तो वो काइंडली अपने एनुअल चार्जेस डिपॉजिट करवा दें। डिपॉजिट करवाने का एक सर्कुलर गया। उसके बाद पेरेंट्स का एक ग्रुप हमारे पास इकट्ठा, जैसे मैंने अपने पहले ही वर्ड्स में कहा कि पहला ग्रुप हमारे पास फ्राइडे आया, उसके बाद ये ग्रुप परसों आया। तो ग्रुप्स इकट्ठे होके आ रहे हैं। मुझे सोचने का मौका देंगे, बात करने का मौका देंगे, तभी मैं बात कर पाऊंगी। बात होने के 15 मिनट बाद ही धरने की न्यूज़ फ्लैश हो जाती है पूरे सोशल मीडिया पे, और हमारे बच्चों के बीच में भी वो न्यूज़ फ्लैश हो रही है। बच्चे आपस में क्लास के ग्रुपों में बात कर रहे हैं कि क्या हम उस धरने पे जाएं। मेरी पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि बच्चों का भविष्य खराब ना करें, बच्चों को इन चीज़ों से, ऐसी पॉलिटिकल गतिविधियों से दूर रखें, क्योंकि मेरे देश की यही वेल्थ है,
यूथ इज़ द वेल्थ ऑफ माई नेशन, इसे ना खराब करें। जो भी मुद्दा है हम यहाँ पर बैठकर बात करने को उसके ऊपर तैयार। उसके लिए देखिए, अब मैंने उन्हें बाहर कह दिया, जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे, कि आप अपना मेमोरेंडम मुझे प्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद ये डिसीजन, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल जो भी हमने डिसीजन लेने हैं, दैट इज़ टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर बोर्ड ऑफ द स्कूल। स्कूल की मीटिंग बैठेगी, मैनेजमेंट बैठेगी, उसमें ये डिसीजन ले सकती है। कोई पता है कि स्कूल्स आर ऑल्सो अंडरगोइंग अ वेरी क्रूशियल स्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, जिसके मद्देन आपके सामने ये मैं लिस्ट रख सकती हूँ। ये मैंने अभी अपने जो भी कुछ इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ये आप देखिए कि मेरे पास 48 लाख की इस साल की बैलेंस अमाउंट है। आप चेक कर सकते हैं, किसी पेरेंट्स का 5000 है, किसी का 15 है, किसी का 20 भी होगा। आप इसे भी ज़रूर फ्लैश करिए कि स्कूल का अभी तक इस साल का सितंबर का 48 लाख स्कूल कैसे गुजारा करेगा। अगर 48 लाख आज की अमाउंट डेट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, स्कूल किस तरीके से सर्विस मैनेज करेगा, स्कूल अपने रनिंग एक्सपेंडिचर्स किस तरीके से कवर करेगा। ये बैलेंस 2019 का है। 2019 में ये जो पैसे हमारे डेड हो गए, बैड डेट्स जो हम रिकवरी नहीं कर, उसका सिर्फ यही जवाब है कि जब स्कूल के पास फाइनेंसेस ही नहीं होंगे, अपनी जेब में अगर पैसा नहीं है ना, घर में अगर बच्चा भी अपना पैसा मांगता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ी सी हमने स्टाफ की सपोर्ट के साथ ये कुछ एडजस्टमेंट की थी। हम भी, अब मुझे मौका तो दे मैनेजमेंट से बात करने का। 25 मैंने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि आई विल बी गोइंग टू पुट फॉरवर्ड माई प्रपोजल बिफोर मैनेजमेंट विल बी रेडी टू डू दैट। लेकिन अब आगे के लिए मुझे मौका देंगे तो मैं बात कर पाऊंगी। अगर मौका ही नहीं देंगे, फीसें माफ़ कर दें, इधर एक तरफ आप सैलरी की पूरी बात करें, अगर फीसें भी हम आधी कर देंगे तो स्टाफ की सैलरीज कहाँ से कंपनसेट हो पाएंगी। आप इन बैलेंसेस को तो लुक एक बार नज़र तो डालिए कि कितनी हैवी अमाउंट्स हैं, कितने लॉसेस में है स्कूल्स। जो वीक यूनिट है वो चल ही नहीं पाए। स्कूल है, पेरेंट्स का है, बच्चों से स्कूल चलता है। पेरेंट्स को अगर हम कुछ उनकी जायज़ डिमांडों को सुनने के लिए तैयार हैं तो उन्हें भी तो स्कूल के स्टेटस को, स्कूल उनसे है। सिर्फ ट्यूशन फीस, सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस। इट इज़ नॉट अ बैलेंस ऑफ एनुअल चार्ज एंड ऑल, ये सिर्फ ट्यूशन फीस का बैलेंस है। ये 2021 की जो लास्ट ईयर के जो बैलेंस है, जो हमारे बैड डेट्स में गए, जो रिकवरी नहीं हो पाई, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे फिर भी हमने एडजस्ट करके उनको कुछ डिस्काउंट्स देके यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ 2021-22 में।